हैं. So as we understood, now we understood about preparing a frequency polygon using histogram. Okay, now next is we'll prepare the frequency polygon. Now again we'll prepare the frequency polygon, but with the help of class. हम लोग क्लास मार्क से कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे वो हम देखेंगे. इसमें देखो थोड़ा सा चेंज है. When we are preparing the frequency polygon with the help of class mark, here we have to first prepare a frequency distribution table which are overlapping. यहाँ पर frequency distribution table जो होगा, frequency distribution table with intervals, मतलब इसमें थोड़ी मेहनत करनी है. तो ओवरलैप ले लेते हैं. Find the class marks of the class interval and locate them on the horizontal axis, class interval axis. अब हम लोग ठीक जैसे हम लोग हिस्टोग्राम बनाए थे, यहाँ पर भी हम लोग horizontal axis पे पहले जाते हैं, where we'll prepare the class interval, जिसको हम बोलते हैं class mark. ठीक है. Now जो horizontal axis में हम लोग class interval बनाएंगे ना, this will be actually our midpoint. ये हमारा midpoint के रूप में use होगा. This will be the middle points of the line segments on the horizontal axis. तो ये हमारा midpoints होगा. ठीक है, representing the overlapping class interval. तो आप समझ सकते हो, this will be our midpoints of the line segments representing overlapping class intervals. Okay. Now third point is horizontal axis हो गया. अब हम लोग perpendicular बनाएंगे to the horizontal axis at the points representing the class mark. अब हम लोग इसका एक perpendicular बनाएंगे. See, I will prepare this. जब हम बनाएंगे इसको तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा. But just note this down so that whenever you want you can revise it. आपको steps याद रहे. So now we can draw perpendicular to the horizontal axis. Perpendicular तो horizontal axis पे ही बनेगा ना. Horizontal axis. Now at the points representing the class mark, the lengths of the perpendiculars should represent the frequencies of the corresponding class. हमें पता है every time when we prepare the length represent the frequencies. Length तो frequencies को ही represent कर रहा है ना, कितने numbers आए हैं, कितने marks आए हैं, whatever. So in other words, draw points with coordinates A, B. A is equals to class mark and B is the corresponding frequency. Like यहाँ पर हम लोग ऐसे बनाते हैं. Points जो है वहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे A, B. या सपोज कुछ भी आप दे सकते हो, वट एवर नंबर. जैसे मैं दे सकती हूँ 5, 15. जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 5, 15. 5 x का पॉइंट है 5 और मतलब x इज इक्वल्स टू 5. मैं ऐसे दिखा रही हूँ तुमको. जब x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 15, तो उस पॉइंट को आप उस पॉइंट में व्हाट यू विल डू, यू विल मार्क दैट पॉइंट एंड देन यू विल राइट दिस एज 5, 15. उसका मतलब होगा x is 5 and y is 15. वो मार्क करते हैं और वहाँ पे लिखते हैं. ठीक है, बी दी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी व्हाटएवर. नाउ विल जस्ट लास्ट स्टेज इज जस्ट वी विल कनेक्ट ऑल दिस पॉइंट. हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एंड वी कैन जस्ट प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी ऑन विद दिस क्लास मार्क. ठीक है. नाउ मैं आ जाती हूँ इसमें अगेन गोइंग टू अनदर चार्ट. एक चार्ट में हम लोग आ जाते हैं. ये हो गया तुम्हारा क्लास इंटरवल. ये हो गया तुम्हारा क्लास इंटरवल एंड दिस इज हुआ है. दिस आर डेटा गिवन. अब क्लास इंटरवल इज 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20, 20 to 30, 30,
then 52. Okay. Now frequency are 15, 18. Again the frequency is same, I suppose. 10, 24, 12 and 9. This is the frequency. Okay. Now we already understood the intervals are already overlapping. This is a, that is the distribution is already continuous. We can easily observe it. 0 to 10 है, 10 to 20 है. तो distribution जो वो continuous है. तो हमें इसको continuous बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. So we can simply use the class mark, that is midpoints of the interval are 5, 15, 25, 35 इस तरीके से होगा. तो है ना, 0 to 10 के बीच में 5 आएगा, 10 to 20 के बीच में 15 आ जाएगा. तो ऐसे होगा 5, 15, 25 इस तरह के आपका मिड पॉइंट या क्लास इंटरवल्स का जो मिड पॉइंट्स है. मिड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स आर 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55 इस तरीके से आएगा. मैं इसको लिख देती हूँ, आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, सो दैट यू कैन रिमेम्बर. जो आपका क्लास इंटरवल का वो क्या आ रहा है, 0 to 10 के बीच में 5, 10 to 20 के बीच में आपका आ रहा है 15, 20 to 30 के बीच में आ जा रहा है आपका 25, 32 के बीच में आ रहा है 35, 40 to 50 के बीच में 50, 45 एंड देन 55. इस तरह का रेंज आ रहा है आपका 5, 15, 25 ऐसे करके. ठीक है. Now we can simply prepare a frequency polygon. I don't know whether I can prepare a frequency polygon in this or not. Bar, pyramid, cone. बार तो हम निकाल सकते हैं, पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का तो बार एरिया एक्स वाई स्कैटर्स आई डोंट नो यहाँ पर है कि नहीं. चलो मैं इसको बना लेती हूँ. इट्स बेटर है प्रिपेयर दिस. मैं इसको यहाँ बना लेती हूँ. ठीक है. कैसे बनाएंगे इसको हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट विल प्लॉट दी एक्स एक्सिस एज यूजुअल, देन दी वाई एक्सिस. ठीक है. हम लोग आ जाते हैं इसमें. दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस. ठीक है. अभी यहाँ पर मैं लेती हूँ क्लास इंटरवल, class interval, and here the y-axis I'll take the frequency. Okay, मैं यहाँ पर frequency ले रही हूँ. अब देखो मैंने पहले ही हम लोगों ने देखा था, ये मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ. तो अगर आप यहाँ लेते हो 0 के पहले कुछ लेते हो तो -5 में मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं 5 से स्टार्ट कर रही हूँ अपना रेंज. 5 इज द मिड पॉइंट, देन यू हैव 10, उसके बाद 10 के बाद 5, यहाँ 10 को मैं लिख सकती हूँ 15, 20, 5 का ले रहे हैं हम, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55 और ये 60 तक जाएगा. ठीक है. 55 तक मैं नहीं और भी जाएगा. चलो मैं इतना ही लेती हूँ और यहाँ नहीं ले रही हूँ मैं. ठीक है. Now what I'll do is, मुझे क्लास इंटरवल यहाँ पर पता है, दिस इज माई क्लास इंटरवल एंड दिस इज माई फ्रीक्वेंसी. तो हम क्या लेंगे, हमारा क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 10. तो 0 to 10 के रेंज में हमारा क्या आ रहा है, मिड पॉइंट इज 5. ठीक है. मिड पॉइंट हमारा 5 है. सो पहले हम 5 को ले लेते हैं. मिड पॉइंट मेरा 5 है. अच्छा सॉरी, आई डिडंट मेंशन दिस वन. मुझे ये भी मेंशन करना है. वाई एक्सिस का स्केल क्या है, वाई एक्सिस का स्केल भी मैं ले रही हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह का. यहाँ का स्केल भी वैसे ही लिया हमने, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट से हम लोगों ने अपना स्केल डिफाइन किया 5-5 पॉइंट्स का. ठीक है. तो हमारा फर्स्ट वाला देखो आप, फर्स्ट वाला में क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है 15, मिड पॉइंट है 5 और क्लास इंटरवल है 0 to 10. ठीक है. अब क्लास इंटरवल इज द रेंज विच इज दिस वन, 0 to 10. देखो क्लास इंटरवल क्या हो रहा है, ये 0 to 10 का जो रेंज है इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल. बट मुझे तो कहीं पे पॉइंट करना है, क्योंकि मैं हिस्टोग्राम नहीं बना रही हूँ या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं.
तो पॉइंट कहाँ पे हम मार्क करेंगे? एज यूजुअल पहले भी हमने किया था, तो हम लोग को पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट इज 5 पे हमारा फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है? 15। तो दिस इज आवर पॉइंट। ये पॉइंट पे मैं मार्क करती हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं लिख देती हूँ 5 and 15. I can simply write this as 5 and 15. ठीक है, ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्या है? 15। जब डेटा 15 है आपका, 15 पे योर फ्रीक्वेंसी इज 80, तो 80 इज समवेयर अराउंड दिस, यहाँ पर होगा। ठीक है, 15 पे आपका यहाँ आ रहा है ये, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 15, एक्स एक्सिस में 15 है मिड पॉइंट एंड 18 इज द फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से है। नेक्स्ट फिर आप देखो 25। जब 25 है तो आपका आ रहा है 10। 25 में ये आ रहा है आपका 10, तो आप क्या देखो ऐसे 25 एंड 10, मैंने ये पॉइंट मार्क किया। ठीक है, और ये आपको लिखना भी पड़ेगा। अब 35 में आ रहा है अगेन 24, तो मैं इधर चली जाती हूँ, फिर 25 के नीचे कुछ होगा तो 35 एंड 24। दिस इज जस्ट अ वे टू प्लॉट, तो मैं ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। नाउ लेट मी कनेक्ट दिस पॉइंट। ये ऐसे मैंने कनेक्ट किया, ऐसे लाइन से ले लेती हूँ। चलो मैं इस लाइन को लेती हूँ। कनेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा समझ जाओ, क्योंकि अब चलो ये हुआ। ठीक है, अब ये देखो ये यहाँ तक हुआ है, तो इसको मैं क्या करूँगी? नॉर्मली मैं इसको क्या करूँगी? एक इमेजिनरी लाइन सॉर्ट ऑफ ऐसे हल्का सा नीचे से कनेक्ट कर देती हूँ -5 से, ऐसे ले जाकर। यहाँ पर भी है ऐसे नीचे की तरफ, जहाँ तक मैंने खत्म किया तो इमेजिनरी लाइन से उसको एक्स्ट्रा में, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दैट वी नीड टू गेट द मिड पॉइंट। हमारा मेन फोकस था मिड पॉइंट्स को लेकर काम करना। इज दिस क्लियर? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके बाद हम लोग ओजाइव कर्व में जाएंगे।